A very good afternoon to all of you. Now, welcome to you, ma'am, and welcome to the Law Center 1 webinar on career opportunities in human rights. The Law Center 1 has been organizing a series of webinars under the able guidance of our professor in charge, Professor Sarabjit Kaur, to benefit the faculty members and especially the students during the time when we are all confined to our homes. Now, in this view, the placement committee of the Law Center 1 has planned to do a career-oriented lecture series to facilitate the 50th year of our Law Center 1. Now, today's speaker is Ms. Jyotika Kalra ma'am, a member of NHRC. Now, I request our professor in charge, Professor Sarabjit Kaur, to formally welcome Madam. Ms. Jyotika Kalra, Dr. Alok Sharma, learned colleagues and dear students. A very good afternoon to all of you. As part of its Golden Jubilee celebrations, Law Center 1 has been organizing a series of webinars to spread awareness of the contemporary legal issues. Due to the current pandemic conditions, most universities across the world have switched to online mode of teaching, and Law Center 1 too has made a quick shift to virtual teaching mode. In order to provide the students with the benefits of lessons learned in the field, we are organizing webinars to connect the students with eminent experts in their respective fields. It's my pleasure to welcome you all today to the webinar on career opportunities in human rights. The preamble to the Universal Declaration of Human Rights includes the words, recognition of inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. These words remind us of the significance of basic human values and human rights in changing times. In fact, a nation which confers human rights and hosts a legal system which protects human rights is considered to be the highest aspiration of its people. The objective of today's webinar is to impart information to our students about the career opportunities in the field of human rights law, especially in state human rights commissions of the country and other bodies promoting human rights. I would like to extend a warm welcome to Ms. Jyotika Kalra, a member of the National Human Rights Commission. It's an immense pleasure and moment of honor for us to have her as a keynote speaker in the webinar. I heartily welcome you, Ms. Kalra. I welcome Dr. Alok Sharma, the faculty convener of the Placement and Internship Committee of Law Center 1, who will also be acting as the moderator for today's webinar. It's my pleasure to extend a hearty welcome to all my colleagues and our dear students who have joined the webinar. The innovative and fruitful initiative, Career-Oriented Lecture Series, is a brainchild of Placement and Internship Committee of Law Center 1 under the guidance of Dr. Alok Sharma. Its objective is to provide the students, especially for the ones studying in the final year, to make them aware about the career opportunities, to assist them choose the right opportunity as per their profile, and above all, to inculcate industry-needed traits in them. It is tailored primarily to bring finest minds of the legal field, such as Ms. Jyotika Kalra, to expose our students to the experience and learnings of the learned speakers who have spent years in the field. As a teacher, I wish that our students achieve the highest of the milestones in their career and may learn effectively from the distinguished speakers who can further the knowledge of our students
with real world experiences. And I hope that our placement and internship committee will continue to guide the students in the most crucial phase of their lives as it has been since its inception. Once again, I warmly welcome all of you. Thank you. Okay, so in the meantime, I would like to give a brief introduction of Madam Kalra because so many achievements to her credit. So I want to mention few of them. Before joining NHRC, Madam was a practicing advocate and advocate on record with the Honorable Supreme Court of India. She did her Bachelor of Commerce from Delhi University and LLB from our Faculty of Law. She had many public interest litigations. She filed many public interest litigations. Significant among them is opening up a channel for females to practice as a makeup artist in cine industry after 60 years of independence. This became very popular case of Madam. Another is raising the issue of non-recruitment of women in the armed forces that resulted in the opening of opportunities for women in territorial army, etc. She has conducted many awareness and gender sensitization programs with schools, colleges, universities, government and non-government organizations. She was a member of many sexual harassment committees and has dealt with many sexual harassment complaints. After being appointed as a member of the National Human Rights Commission, she has been dealing with subjects like women, children, LGBT, trafficking, reproductive rights, etc. Under her leadership, many workshops have been conducted in the Commission as well as in different parts of the country relating to POCSO, JJ Act, restorative justice, sexual harassment at workplace, gender equality, and economic development, etc. We welcome Ma'am Kalra to have a discussion on career opportunities in human rights. Thank you, ma'am. Heartiest welcome to you. Now over to Ma'am Kalra. Thank you, Alok. I think I'll be using a mixed language, both English and Hindi. Am I audible? Right, very nice. So first and foremost thing is for the students to understand as to what is human rights. Because if you go by the definition of human rights, which is there in the Protection of Human Rights Act, it talks about the right to life, liberty, equality, and dignity. I mean, the dignity is important, the life is important, and liberty is important. With these rights and all those rights which have accrued to the people through the international covenants and which are enforceable in the courts of law. So this is basic definition. So if we just go further in this definition, so this definition includes all the fundamental rights which are there, and this definition also includes the rights which are enforceable in law, means the rights which have accrued to the people through the legislature. An international covenant, which the provision is there in our constitution. The role of NHRC or role of State Human Rights Commission or the functions of both these commission is as per the Act, which deals in details about the roles and functions of these commissions. Coming to the point of how commission is being perceived by the society. So two categories of person are there who perceive the commission in two different manners. First category is a category of person who believe that human right commission, for them human right means human right commission state or national human rights commission. For them that this human right commission is a panacea. I mean, it's a सभी मर्जों की दवा है. कुछ बात हो गई तो ह्यूमन राइट कमीशन या ह्यूमन राइट बॉडी जो है वो सभी समस्याओं का निदान करेगी, सबको सॉल्व कर देगी. और कुछ लोग ऐसे हैं, ये एक ऐसा तबका जिसकी मैंने बात की कि उसको लगता है कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो हर चीज का एक समाधान दे सकते हैं. और एक दूसरा तबका है जो इस ह्यूमन राइट विषय को या ह्यूमन राइट सब्जेक्ट को, जिसमें कि ह्यूमन राइट कमीशन भी आते हैं और साथ में ह्यूमन राइट डिफेंडर्स भी आते हैं, वो इस विषय को
नेगेटिवली लेते हैं या नकारात्मक रूप में लेते हैं। उनको ये लगता है कि हर समय राइट की बात होती रहती है, ड्यूटीज कहाँ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ है। तो वो ये तबका कहता है कि जब आप ह्यूमन राइट की बात करते हो तो आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, आप हमेशा मेरा को ये मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलना चाहिए, ऐसी बात करते हो। और एक सिंपल सा सादा सा एग्जाम्पल दे के अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगी। उनको लगता है कि अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में माओइस्ट मर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो समाज वो ये कहता है कि आप देखो अब ये ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे, ये जो माओइस्ट थे, ये जो नेगेटिव लोग थे जो हिंसा फैलाते थे, उनकी सुरक्षा के लिए अब ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे, अब ह्यूमन राइट कमीशन सब बातें करेगा। और वही अगर मॉइस्ट के अटैक में अगर पुलिस के कुछ जवान मर जाते हैं तो भी वो ये कहते हैं कि कहाँ है ह्यूमन राइट कमीशन, कहाँ है ह्यूमन राइट की बात करने वाले लोग, कोई भी अब नहीं आएगा, कोई भी पुलिस के अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं बोलेगा। तो वो उस ह्यूमन राइट के जो कॉन्सेप्ट है, जो राइट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, उसको नकारात्मक रूप से लेते हैं और ये थोड़ा सा उसको ये मान के चलते हैं कि समाज व्यवस्था और इस पूरे जो सिस्टम को ये अननेसेसरली हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और अननेसेसरली जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, जो समाज में लॉलेसनेस फैलाते हैं, उनकी रक्षा हेतु सामने आते हैं। तो वही तो जब बड़ी ऐसी विडंबना से बन जाती है कि एक तरफ अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है कि कमीशन, क्योंकि अपेक्षा है कि कमीशन के पास हर मर्ज की दवा है, और जब वो मर्जों की दवा नहीं निकलती तो बार बार ये निकल के आता है कि कमीशन तो कुछ करता नहीं, कमीशन तो होना ना होना बराबर है, ये तो कागज का शेर है, इसके पास कुछ करने को नहीं है, तो वो भी सुनना पड़ता है। और दूसरी तरफ ये भी आता है कि ये जो राइट बेस्ड अप्रोच है इसकी शायद समाज में जरूरत नहीं है, अगर हम ड्यूटी बेस्ड चलेंगे, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, तो इस प्रकार की राइट्स की और कमीशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैरियर इन ह्यूमन राइट की जब हम बात करते हैं तो ये वैसा कैरियर नहीं है कि जैसे आप लोगों का है कि प्रोफेसर है तो मतलब अच्छे ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा, जब से आप पढ़ रहे थे तब भी आप समाज के बहुत अच्छे अंग थे, फिर आप जब पढ़ के टीचर बनने के लिए पीएचडी हो तब भी आप समाज के बहुत अच्छे अंग थे, और जब पढ़ा रहे हैं तो अभी भी आप समाज के बहुत ही बढ़िया अंग है कि आपसे अच्छा कोई नहीं, क्योंकि कुछ नेगेटिव तो है ही नहीं। शिक्षा आपने देनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों ने पढ़ना है, और आपके पढ़े हुए बच्चों ने वकील बनेंगे, जज बनेंगे, तो आपको श्रेय ही श्रेय। ये उस तरह का प्रोफेशन नहीं है, ये डॉक्टर इंजीनियर की तरह का भी प्रोफेशन नहीं है कि हाँ भाई प्रोफेशन बहुत अच्छा है। तो ह्यूमन राइट में जो काम करते हैं उनको दोहरी तलवार, मतलब उनको ये भी सुनना पड़ता है कि आप कुछ करते नहीं, और उनको ये भी सुनना पड़ता है कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा करते हो। तो बैलेंस कैसे, मतलब दोनों चीजों में कैसे बैलेंस, ये सोचने की बात है। और ये मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रही हूँ कि जो अपना जो प्रोफेशन है या उसको अपने जीवन की एक वोकेशन बनाना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जाने में उनको इस प्रकार के चैलेंजेस या इस प्रकार की चुनौतियां होंगी जिसके लिए वो तैयार होने चाहिए। अब सवाल आता है कि ह्यूमन राइट में कोई क्यों जाना चाहेगा, मतलब ये फिर मैं वो कहती हूँ कि जब तक यहाँ हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी बहुत से वकील बनने वाले जो स्टूडेंट्स है, लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट काफी बड़ी तादाद में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, ह्यूमन राइट की ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा भी इंटरेक्शन उनसे होता है, तो जब उनसे पूछो कि आप क्या पढ़ रहे हो और आगे भविष्य की आपकी क्या योजना है, तो मेजरली कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं। ये मतलब पिछले कोई 8-10 साल से। अब वो शायद उनको पूछा भी जाए आगे अगला सवाल हो भी कॉर्पोरेट लॉयर से आपका क्या मतलब है, तो शायद उनके पास उसका जवाब नहीं होता। और उनका मतलब एक ऐसा है कि हमने लॉ कर रहे हैं तो हम अब बस जब लॉ करके निकलेंगे तो हमारे कोई मतलब कम से कम नहीं तो 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसा पैकेज मिलेगा और हम कॉर्पोरेट लॉयर बनेंगे। वैसे तो मैं उसको तो एक तरफ छोड़ देती हूँ कि कितने लोगों को वैसे पैकेज मिलते हैं और क्या वो बन पाते हैं, वो एक अलग बात है। तो इस मानसिकता का व्यक्ति ह्यूमन राइट में अपने कैरियर को नहीं तलाश सकता, मैं एक पहले स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो कि उस एंगल से लॉ को देखता है कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनूंगा और क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लॉयर बन जाऊंगा तो मैं इतने लैक्स और रुपीज अर्न कर सकूंगा। तो वो शायद उसके लिए ये अगर ये विचार या ये जो एरिया ऑफ कैरियर है उसके लिए तो शायद नहीं बना।
ये एरिया ऑफ कैरियर, इसको एक, और देखिए कैरियर कैसे बन जाता है, समाज सेवा और कैरियर दोनों में कहां फर्क आ जाता है, जब उसी काम में आप पैसा कमाने लगते हो, जब आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन जाता है, तो वो एक प्रोफेशन या कैरियर बन जाता है। मतलब समाज सेवा तब तक होती है कि जब तक आप उसी काम में, काम वही है, उस काम में अगर आप पैसा नहीं ले रहे तो आप समाज सेवा कहते हो, और उसी काम के लिए अगर पैसा बन लेते हो तो वो कैरियर या आपका वोकेशन बन जाता है। आज हम उस दूसरे एस्पेक्ट पे हैं कि ह्यूमन राइट में कैरियर और वोकेशन को हम कैसे देखते हैं। तो पहला, मानसिकता आपकी वही चाहिए, मतलब आपकी सोच वही चाहिए कि जो सोच एक समाज सेवक की होती है, एग्जैक्टली द सेम सोच ह्यूमन राइट में कैरियर बनाने वाले को भी चाहिए। मतलब उसको दिमाग से ना सोच के दिल से सोचना होगा। मानवाधिकार की जो बात आती है, जो मानव की बात आती है, वो दिमाग से उसका संबंध नहीं है, उसका दिल से संबंध है, उसका सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता से संबंध है। उसको मानव की जो कल्पना है, जो मानवता है, ह्यूमैनिटी जो है, उसको समझना होगा कि इंसान जो है वो अपनी ह्यूमैनिटी से होता है, मानवता से होता है। तो उस मानवता के एंगल को उसको हमेशा अपने सामने रखा होगा। उस एंगल के रखने से ही, क्योंकि उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है, वो एस्पेक्ट है, वो लाइफ को वैल्यू करेगा कि राइट टू लाइफ को वैल्यू कर सकता है, या राइट टू डिग्निटी को वैल्यू करेगा, या राइट टू इक्वालिटी को वैल्यू करेगा, राइट टू लिबर्टी को वैल्यू करेगा। अगर उसको वो मानवता कीमत ही नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो ये बिल्कुल सोचेगा कि ये जो मेरे ऑफिस में चपड़ासी है, इसको मैं, अब जैसे कोविड की मैं बात करूं तो इसको मैं कहूंगा या तो मेरे ऑफिस में ही रुक, या फिर तुम मत आ। मतलब जो एक माली आता है, मैं कहूंगा भाई आप मत आइए। मतलब वो सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात सोचते हुए आगे चलता है। तो वो बराबरी की बात नहीं सोचता, क्योंकि उसके दिमाग में होना चाहिए बराबरी का, कि अगर मुझे बराबरी का अधिकार है तो शायद इस व्यक्ति को भी बराबरी का अधिकार है। अगर मैं अपने काम पे जा सकता हूं तो इसको भी राइटफुली उस काम पे आने का मतलब है, उसको अधिकार है। सिमिलरली अगर जो डिग्निटी ऑफ वर्क, मतलब काम कर पाना, राइट टू वर्क जिससे फंडामेंटल राइट कहते हैं, तो वो काम कर पाना, अगर मेरे मन में वो भावना होगी तभी मैं इंश्योर करूंगा कि वो भी व्यक्ति वो काम कर पाए। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि मन से आप मानवाधिकार के क्षेत्र में अपने जो वोकेशन है या जो अपने कैरियर को अगर आप चलाना चाहते हैं, तो पहले आपको मन से मानवाधिकार के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि व्यक्ति का अधिकार बराबरी का है, उसका स्वतंत्रता का है, डिग्निटी का, राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो कि अगेन बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, पर वो सोचना होगा। अब बात आती है कि कैसे लॉ के साथ मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स को हम कैसे जोड़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन राइट की जब बात आती है तो या तो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, जिसको लोग मतलब थोड़ा अगेन नेगेटिव लेते हैं कि हमेशा ये मुल्जिमों की बात करते हैं या देशद्रोहियों की बात करते हैं, एक कंसेप्ट ऐसा बना हुआ है। और या फिर ह्यूमन राइट कमीशन है तो उसको भी थोड़ा उस प्रकार से लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। एक एरिया जरूर पड़ता है कि जहां पे ह्यूमन राइट की जब बात हम करते हैं तो हम क्रिमिनल्स की राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जो कि उनको कानून में दी है। जो सीआरपीसी में अरेस्ट का प्रावधान है कि अरेस्ट करके उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, अगर उसकी वायलेशन होती है, वो फंडामेंटल, वो उसके स्टैट्यूटरी राइट का वायलेशन है, और जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, वो उसका संज्ञान लेता है कि क्यों उसको पेश नहीं किया गया। या फिर जब कोई कंप्लेंट लेके जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो मानवाधिकार आयोग उसका संज्ञान लेता है कि ये इसका अधिकार था, सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील हो रहा था, इसमें क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई, तो वो उसका संज्ञान लेके उसमें नोटिस जारी करता है। इसी प्रकार अगर जेल में जो व्यक्ति है, उसको जेल में जाने से पहले उसका मेडिकल नहीं होता, या कोई पुलिस एट्रोसिटीज की बात करता है कि मेरे साथ पुलिस ने मारपीट करी, वो सब चीजों को मानवाधिकार के हनन के तौर पर आयोग उसका संज्ञान लेता है। मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आयोग के पास कोई ऐसे अधिकार उस कानून से नहीं आते। आयोग जो संज्ञान लेता है वो इस बिना पे लेता है कि आईपीसी में, सीआरपीसी में जो अधिकार अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के, जो अधिकार मुल्जिमों के, और जो अधिकार को विशेष रूप से कोर्ट्स के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि ये टॉर्चर को लेके, जैसे शब्द नहीं है पर टॉर्चर को लेके जो कोर्ट से निकल के आते हैं, उन सब चीजों को, अधिकारों को हम आयोग कानून से, क्योंकि उन अधिकारों को तो पाता है, तो आयोग ये अपना प्रयास जरूर जारी रख पाए कि
जो मुल्जिम है उनको वो अधिकार मिल पाए। वही मैंने कहा ये एक एरिया है, और वो उस एरिया में से भी मैंने आपको बताया कि उन अधिकारों की बात की जाती है जो अधिकार उनको संवैधानिक तौर पर या कानून के द्वारा मिलते हैं। पर इसके अलावा भी मानवाधिकार का बहुत सारे एरियाज हैं। जितनी भी सरकारी काम होते हैं, अब आप ले लीजिए पीडीएस है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान पीडीएस की बहुत चर्चा में आता है कि पीडीएस और वन नेशन वन कार्ड की भी जहां बात आती है, उसमें क्या है कि राइट टू फूड जो इंश्योर किया गया, एक स्टैट्यूटरी राइट है, उस राइट टू फूड के चलते पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज हैं उनके पास राशन कार्ड्स हैं, उनके माध्यम से उनको भोजन मिलता है, उनको पल्सेस मिलती हैं, या उनको जो ग्रेन्स गेहूं और चावल राशन की दुकानों से मिलता है। आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ये भी इसी राइट टू फूड में आता है। तो उसमें भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भोजन उपलब्ध कराना, आंगनबाड़ी में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना, ये जो एक प्रेग्नेंट मदर है उसको भोजन उपलब्ध कराना। तो वो जहां एक प्रेग्नेंट मदर को एमएनएस या एमएनएस की सेवा मिलनी चाहिए, उसको कितना मात्रा में उसका जो जांच है, उसकी ब्लड की जांच होनी चाहिए, कितने मात्रा में उसको क्या क्या विटामिन चाहिए, क्या क्या उसको आयरन चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये सब उस राइट टू फूड के आगे सब अधिकार और सब अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत ये राइट पैदा हो जाते हैं। तो जहां पर भी इनकी अवहेलना होती है, जब एक आयोग के पास ये शिकायत आती है कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी, जब उसने, फिर इसी प्रकार एम्बुलेंसेज भी हैं, स्टेट्स में डिफरेंट लेवल पे एम्बुलेंस है, 108 नंबर या कुछ है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को घर से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। तो जब ऐसी शिकायत आती है कि हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर ने उस प्रेग्नेंट वुमेन को देखा नहीं, उसकी देखभाल नहीं करी, एम्बुलेंस या नहीं पहुंच पाई, या जहां हॉस्पिटल में पहुंची वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी जो उसकी डिलीवरी कर सकता, उसके चलते वो कमजोर है तो उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, या उसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो वो भी मानवाधिकार आयोग के लिए एक कंप्लेंट का रूप है, वो मानवाधिकार का हनन है। और आयोग पूछता है, सरकार से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों हुआ। और उस इंक्वायरी के बाद जब आयोग पाता है कि एम्बुलेंस की सेवा प्रॉपर नहीं थी, या एमएनएस की जो नर्स थी उसकी सेवा प्रॉपर नहीं थी, या फिर डॉक्टर्स ने प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया, तो उसका संज्ञान लेते हुए आयोग जवाब मांगता है, उस पर कार्रवाई करता है। तो ये भी एक मतलब कि जो भी सरकारी जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं अन्य सरकार की अनेकों अनेक योजनाओं के तहत, तो उनको मिल जाए, इसको भी आयोग इंश्योर करता है, या उसको भी। और ये इंश्योर कैसे करता है, बहुत सारी जो शिकायतें आती है वो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के माध्यम से ही आती है। और ये एक्ट जो प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट है, ये भी ये लिखता है कि आयोग का ये दायित्व बनता है कि ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को वो प्रोटेक्ट करे, उनकी वो सुरक्षा करे। तो मैंने एक जैसे ये उदाहरण बताया, उसी प्रकार पहले मैंने पुलिस का बताया, दूसरा मैंने बताया कि जो स्कीम्स के अंतर्गत लोगों को बेनिफिट्स अवेलेबल है। इसके बाद स्कूल्स है कि गवर्नमेंट स्कूल में उनमें टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं है, जो ये क्या कहते हैं ट्राइबल गर्ल्स के लिए आश्रम स्कूल्स है, या जो बोर्डिंग स्कूल है, नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उन बोर्डिंग स्कूल में भी अगर ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही, या उनके पास टीचर्स नहीं है, या रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उनका भी संज्ञान एक शिकायत के तौर पर आयोग में आता है और आयोग उसका संज्ञान लेता है। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कंप्लेनेंट भी शिकायत कर सकता है, और यही शिकायत किसी के द्वारा कंप्लेनेंट के बिहाफ पे भी की जा सकती है। तो एक जो कैरियर इन ह्यूमन राइट्स है, तो ये भी एक एरिया ऑफ कैरियर इन ह्यूमन राइट्स है कि जब आप वकील हैं, आपके संज्ञान में कोई इस प्रकार की शिकायत आती है, मान लीजिए एफआईआर दर्ज ना करने का केस आता है, एक बलात्कार होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है और एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो जो कोर्ट के माध्यम से आपको पता है कि आप शिकायत करते हो, आप डीसीपी को शिकायत करते हो, एफआईआर नहीं दर्ज होती, फिर नहीं होती, तो आप हाई कोर्ट में जाते हो फॉर विद फाइलिंग अ रिट ऑफ मैंडेमस, जिसमें कोर्ट डायरेक्शन देता है, तो उसके डायरेक्शन पे या 156(3) की आप दरखास्त लगाते हो। तो काफी लंबा प्रोसेस, मतलब काफी टेक्निकल प्रोसेस है। पर इस आयोग में जब एक वकील ही, मैं कह रही हूँ कि इसी कंप्लेंट को, जब उसके पास एक कंप्लेंट आती है तो वो संज्ञान लेता है और उसको रिलीफ दिलाने के लिए एक कंप्लेंट NHRC.nic.in वेबसाइट है, जिसमें कि कंप्लेंट पूरे फॉर्मेट में है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक पिटीशन डालनी होती है, आपको जी मुझे 156(3) CRPC की कंप्लेंट कोर्ट में डालनी है, या मुझे हाई कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस डालनी है, तो सबसे पहले आप कहोगे
भाई ऐसा है, उसको फोन करोगे, इसको फोन करोगे, मुझे ना एक कॉपी दे दे पिटीशन की, एक 156(3) की पिटीशन की कॉपी दे दे या एक मैंडेमस की कॉपी दे दे। तो आप पहले तो काफी मेहनत इस पे आपकी लग जाती है, कॉपी मिल जाए, फिर आप, ताकि आपको लगता है कि कोई गलती ना हो जाए मेरी उसमें। तो वो वाला जो कोर्स है, वो वाला जो एक्सरसाइज है, वो NHRC ने उसको रिजॉल्व कर दिया। जो वेबसाइट के ऊपर कंप्लेंट का फॉर्मेट है, वो पूरा फॉर्मेट है, उसमें हर चीज डिटेल में पूछी जाती है, नाम, आपका एड्रेस, आपका रिस्पोंडेंट, क्या केस है, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट NHRC को उस कंप्लेंट को डिसाइड करने में चाहिए, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगती, सब डिटेल्स आपसे पूछ ली जाती है और एक एक करके आप सारी डिटेल भर देते हो, तो आपका पूरी तरह से जो शिकायत है वो एक संज्ञेय शिकायत बन जाती है और उसमें कोई शिकायत नहीं होती। शिकायत भरते ही एक आपके जो मोबाइल नंबर दिया जाता है, उसके बाद डायरी नंबर आ जाता है कि आपकी ये डायरी नंबर आ गई, और डायरी नंबर के बाद जैसे वो केस रजिस्टर होता है, और जो उस केस और देने के बाद आपका काम खत्म। उसके बाद उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे उसमें जो जो प्रोग्रेस होगी, और आयोग जो है उस पुलिस स्टेशन या उस SSP उस एरिया के DGP को पूछेगा कि एक्शन टेकन, रिपोर्ट दीजिए, ये संज्ञेय अपराध था, आपने इसमें FIR क्यों नहीं दर्ज करी, और वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जिसने शिकायत की थी उसको कुछ भी नहीं करना, उसको बस उसके फोन के ऊपर उसको सब चीजों का अपडेट आता रहेगा, और जब मान लीजिए जवाब आता है, समय लगेगा, मान लीजिए साल भी लग सकता है, मतलब इतना समय लगेगा, पर आप ऐसा पाएंगे कि साल के बाद आपको एक ऐसी प्रोसीडिंग, मतलब एक ऑर्डर आयोग का आ जाएगा जिसमें डायरेक्शन DGP मान लीजिए छत्तीसगढ़ को डायरेक्शन होगी, इस थाने में इस घटना के तहत आप FIR दर्ज करें, और क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी और कंप्लेनेंट को जगह जगह घूमना पड़ा, उसके लिए कॉम्पनसेट करने के लिए उसको आप 2 लाख का हर्जाना जमा कराएं, और वो सब जो अधिकारी थे जिनके नेग्लिजेंस की वजह से FIR नहीं दर्ज हो पाई, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो जो रेमेडी, जो रिलीफ आपको कोर्ट से मिलना था, लगभग वैसा या उससे ज्यादा रिलीफ उस आपके कंप्लेनेंट को मिल गया, बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी टेक्निकल लचिस के, और अपने घर में बैठे बैठे। तो ये भी एक बड़ा ही अच्छा एरिया है। जो बच्चे वकालत पढ़ते हैं तो वो इन शिकायतों को मानवाधिकार आयोग के माध्यम से, वो आप जो क्लाइंट्स भी कह सकते हैं या विक्टिम्स भी कह सकते हैं, जिनके लिए वो रेमेडी इंश्योर कर सकते हैं। और मैं उसके बाद दूसरे एरिया पे आती हूँ, और दूसरा एरिया है NGOs। क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट लॉयर का जो मैंने शुरुआत में एक जिक्र किया था, बहुत मुझे लगता है बड़े सतही सा काम होता है, बड़ा फौरी काम होता है, जो लोगों को अच्छा लगता है वो करते हैं। पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इसके अंदर घुसना है, मुझे इस मसले में घुसना है, मुझे इसको अंदर जाना है, और जो ये पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बनकर मुझे वो पॉलिसी बनानी है। तो ये जो लॉ के साथ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि आप NGO के साथ काम करते हैं, क्योंकि जहां जहां भी आपको सारी फिर जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो मैंने स्कीम्स आपको बताई, जैसे अभी करोड़ों रुपए के एलोकेशन होते हैं जो केंद्रीय सरकार के, राज्य सरकारों के, मनरेगा का हो सकता है, वो सभी की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आप उन NGOs में काम करके, एक्टिवली काम करके, बिल्कुल उनके ऊपर आपका होल्ड हो जाता है, आप उन सबको बहुत अच्छे से समझ लेते हो। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो आपका ग्राउंड एक्सपीरियंस है, जो कि आपको क्षेत्र में काम करते रह आता है, तो वो ग्राउंड एक्सपीरियंस आप उसके बाद कुछ मुझे अभी एक बच्ची का ध्यान है, वो IIT से ग्रेजुएट थी, केमिकल इंजीनियरिंग, और उसने धारावी में, बॉम्बे में 3 साल सोशल वर्क किया, मतलब एक NGO के साथ जुड़कर, मैं बताना चाहती हूँ। और अब उस लड़की का वॉर्टन स्कूल, अमेरिका का जो मैनेजमेंट का टॉप मोस्ट स्कूल है, उसमें उसका एडमिशन हुआ। ऐसा मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारा बड़ा तबका है समाज का, उसको उसके सामाजिक सरोकार नहीं है। उनको ये नहीं होता कि गांव में पानी की दिक्कत है, उससे वो व्यथित नहीं होते। उनको ये नहीं होता कि जो बच्चे को स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर चल के जाना होता है, उससे वो व्यथित नहीं होते। तो बहुत ऊपर का अपने तक विचार रखते हैं। तो जो बच्चे ऐसा काम करते हैं, तो जब पब्लिक पॉलिसी की बात आती है, स्टेट जब पॉलिसीज बनाता है, कि राज्य को तो वो पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि बड़े स्तर पर जनता का भला हो, तो वो जनता का भला वो तभी कर पाएंगे जब उनको पूरी जानकारी होगी, उन लोगों से जानकारी मिलेगी जो जनता के भला की संवेदना रखते हैं, और क्षेत्र में जाकर जनता के भला कैसे भला हो
वो उनको बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो जो आप काम करते हैं वो काम आपका, आप पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनने के लिए आपको फर्दर स्टडीज करते हैं, या कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रिसर्चेज होती हैं, सब कुछ होती है। लॉ और इस ह्यूमन राइट के फील्ड में जो आपका काम है वो अपने आप में बहुत इनोवेटिव और बहुत एक ऐसा एरिया है जिसपे लोगों की अभी बहुत कम उसके अंदर उनकी इंटेलिजेंस है, पर यस, with passage of time it's becoming more important and more progressive. And जो NHRC में जो वेन्यूज है लॉ स्टूडेंट्स के, तो वो दो प्रकार के NHRC या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होंगे। एक तो है JLRC जो है जूनियर लॉ रिसर्च कंसल्टेंट्स। वो JLRC वो है जो कि जो शिकायतें NHRC में आती हैं, जैसे जो माध्यम मैंने आपको बताया था कि कंप्लेंट मैकेनिज्म है, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या ईमेल से भेजते हैं या अदरवाइज बाय हैंड कंप्लेंट भेजते हैं। तो जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको पूरा सेग्रीगेट करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या उसको पढ़ते हैं, उसका एक जिस्ट बनाते हैं कि ये कंप्लेंट क्या सच में ह्यूमन राइट वायलेशन को इंडिकेट करती है, क्या इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवानी चाहिए या इस कंप्लेंट को डिसमिस करना चाहिए। ये फर्स्ट हैंड प्राइमा फेसाई माइंड अप्लाई करते हैं और उसकी प्रोसीडिंग प्रिपेयर करते हैं। ये JLRC का काम होता है, जो NHRC में एक जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है इन फॉर्म ऑफ जूनियर लॉ रिसर्च कंसल्टेंट्स होते हैं। और इसके अलावा जो NHRC में लॉयर्स की अपॉर्चुनिटी है वो रिसर्च में है। ये तो लॉ डिवीजन है इसमें है, और एक रिसर्च डिवीजन है। ये रिसर्च डिवीजन पूर्णतः रिसर्च में रहता है, और रिसर्च में कुछ सोशियोलॉजी से स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, कुछ साइकोलॉजी सोशियोलॉजी से होते हैं, साइकोलॉजी से होते हैं और लॉ से भी होते हैं। तो वो रिसर्च उनका जो काम है, वो जो आयोग में डिफरेंट रिसर्चेस चलती हैं, उन वो रिसर्च उतनी आयोग खुद नहीं करता, पर रिसर्च को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करता है। तो जो भी रिसर्च प्रपोजल आते हैं उनको रिसर्च करते हैं, उसमें अपना इनपुट देते हैं, या आयोग के जितने भी जो अलग अलग स्तर पे कार्यक्रम होते रहते हैं, जो कोर ग्रुप्स की मीटिंग होती हैं, जो अलग अलग विषयों पे जो कार्यक्रम होते हैं, तो ये रिसर्च डिवीजन देता है। इसमें जो बच्चे होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको एक एक्स अमाउंट जो भी फिक्स मिलता है उस तरह से वो करते हैं। और मैंने भी ये देखा है कि यहाँ से जो रिसर्च डिवीजन में या लॉ डिवीजन में बच्चे आते हैं, इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, तो काफी सारों को बहुत अच्छी ओपनिंग मैंने देखा है मिलती है कि विदेशों में और यहाँ वहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज में और फर्दर स्टडीज के लिए या उनकी इंटर्नशिप ऐसा उनको मिलता है कि ये ह्यूमन राइट के अनुभव के आधार पर ऐसा माना जाता है कि एक नेशनल बॉडी में तो आपको ह्यूमन राइट्स की बहुत अच्छी समझ होगी। और ये हुआ, और कैरियर अपॉर्चुनिटीज एकेडमिक्स में है। सभी कॉलेजेस में ह्यूमन राइट्स के कोर्सेज हैं। तो एज ए लेक्चरर आप जामिया में भी ह्यूमन राइट्स का कोर्स है, तो एज ए लेक्चरर आप लॉ करते हैं या आप टीचिंग में जाते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस ह्यूमन राइट्स में सीधा एक्सपीरियंस आता है, तो आप फर्दर स्टडीज करते हैं ह्यूमन राइट्स में, तो एकेडमिक और टीचिंग एरिया में भी ओपनिंग्स होती हैं जो आप ह्यूमन राइट की टीचिंग कर सकते हैं। और मतलब बहुत सारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं विदेशों के, जो स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट हर एक में ह्यूमन राइट एंगल और लॉ का एंगल होता है। तो एक वैसा कॉम्बिनेशन अगर आप बना लेते हैं लॉ के साथ एक एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स, तो एक अच्छा स्कोप बन जाता है फॉर यू टू टेक अप रिसर्च और बी अ पार्ट ऑफ दैट रिसर्च विच वुड बी कैरिड आउट फॉर सम पर्टिकुलर इश्यूज। एंड ये तो है ही। और जितनी नॉलेज, एक जो मैंने बताया था पब्लिक पॉलिसी का, जो शुरू में मैंने रेफरेंस आपको दिया था, तो ये भी बड़ा इमर्जिंग टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी का। पब्लिक पॉलिसी अब जो काम सरकार पब्लिक पॉलिसी के लिए अपने दफ्तर के लोगों पर डिपेंड नहीं करती है। पब्लिक पॉलिसीज के लिए कंसल्टेंट्स ही अपॉइंट किए जाते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के एरिया में पढ़ते हैं और उनको उसका ज्ञान होता है। तो उस पब्लिक पॉलिसी का जब बात होती है तो हेल्थ में जो NHRC के हेल्थ में जो NHRC का एक्सपीरियंस, NHRC के जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो पब्लिक पॉलिसी में बहुत काम आता है। इसी प्रकार वुमेन और चिल्ड्रन के इश्यूज में जो ज्वाइन करते हैं, तो वो भी जो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है या जो घुसते हैं समस्याओं में और मुद्दों में, वो भी पब्लिक पॉलिसी के लिए बहुत काम आता है। तो वो भी एक इमर्जिंग फील्ड है। पैसा मुझे लगता है कि जो भी मैं एक बतौर, क्योंकि मैं पूरा उम्र मैंने वकालत ही की है,
तो काम करोगे तो पैसा तो कमाओगे ही, पर ये सोचो कि पहले पैसा कितना कमाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस जो एक क्यूरियोसिटी पे कहना चाहूंगी, या वो एंजाइटी जो है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई जवाब है। आप काम करेंगे, आपके काम की कीमत पड़ेगी, क्योंकि सबको काम करने वाला चाहिए। पर मोटिव और जो इंटेंशन और जो कमिटमेंट होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, रिजल्ट पे होनी चाहिए। पैसा मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए कितना मिलता है, कैसा मिलता है, किस समय पे मिलता है, वो एक अलग बात है। इस फील्ड में ये कहो जी उस तरह कॉर्पोरेट की तरह पैसा नहीं है, तो मैं उस पर भी थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। तो कितने लोग तो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, वकालत में भी तो कितने लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, मतलब बड़ी इल्यूजन में जीते हैं कि इतना होता है जी, वकील बन गए तो इतना कमा लेते हैं। तो वो इल्यूजन से बाहर आना चाहिए। एक बड़ा एमर्जिंग फील्ड है, एमर्जिंग इन द सेंस लोग इस एरिया में जाते ही नहीं ह्यूमन राइट के काम करने को। वो थोड़ा ऐसे सोचते हैं कि शायद ये तो सोशल वर्क टाइप का काम है, जबकि ऐसा नहीं है। उसी से आप उसको रेवेन्यू का सोर्स, उसी से अपना कैरियर का सोर्स, और उसी से आप अपने एक एज एन एक्सपर्ट उस फील्ड में इतने जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स है, मतलब जो मैं यहाँ आयोग में भी जिनके संपर्क में आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उन्हीं को दिल्ली सरकार ने अगर जे बोर्ड के लिए मेंबर अपॉइंट करने हैं, तो वही हमारे जो एक्सपर्ट है चाइल्ड ग्रुप के या वुमेन ग्रुप के, उन्हीं को बुलाया जाता है। मतलब एक उनकी ऐसी स्टेटस बन जाता है कि इस बच्चे के फील्ड में जो काम करने वाला ये 1 2 3 4 लोग हैं, एक नाम हो जाता है। तो उस तरह से उनको जब भी पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि सरकार को भी पता है कि मेरे दफ्तर के जो लोग हैं, जो सुबह 8-10 बजे दफ्तर आते हैं और 6 बजे दफ्तर से चले जाते हैं, उनके सामाजिक सरोकार नहीं है। वो नहीं जानते कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर को क्या क्या पता होना चाहिए, ना उनकी उस क्षेत्र में जो बच्चों से संबंधित कानून है, ना उनकी एक्सपर्टाइज है। तो ये सब लोग जो सामाजिक स्तर पर एक्सपर्टाइज एक्वायर करते हैं, उनका एक, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये सभी जितने भी, जैसे आयोग में कोर ग्रुप मेंबर्स हैं, वो एलजीबीटीआई पे है, विमेन पे है, चिल्ड्रन पे है, जितने भी कोर ग्रुप्स हैं, वो सभी एमिनेंस, दे आर पीपल ऑफ एमिनेंस, एंड दे आर बीइंग इनवाइटेड by the state as well as the central government as and when there is a discussion or deliberation on drafting of any legislature. समय समय पर उनको मौका मिलता है, वो जाते हैं, और मेरे हिसाब से सरकार जब उनकी एक्सपर्टीज लेती है, बुलाती है, तो उनको जरूर उस मीटिंग को अटेंड करने का पैसा मिलता होगा, क्योंकि एनएचआरसी में भी उनको उसका थोड़ा रिवार्ड जो मानदंड है वो दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत से काम है। मन से आपको मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता, और मन से आपको मेहनत करना और घुसना, कानून की तह में जाना, मुसीबत की तह में जाना, उसकी कानूनी रेमेडीज देखना अपने साथ हमेशा। जैसे मैंने भी अभी है तो ये आईपीसी रखी हुई है, एक्ट रखा हुआ है, मतलब हमेशा अपने जो भी आप करना चाहते हो, कुछ भी कॉमन सेंस से ना लेकर हर चीज को लॉ के जो ओरिजिन है, जहां से स्टार्ट होती है रेमेडी, वहां तक पहुंचना। जिसकी कंप्लेंट है उसकी भी तह में जाना। किसी ने बोल दिया मेरे साथ बलात्कार हो गया, तो उसको मान लेने का, उसको अपने लेवल पे सवाल करने, कैसे हुआ, क्या हुआ, समझना कि क्या कितनी कंप्लेंट में जेन्युइनिटी है, और फिर किस तरह से कंप्लेंट की जानी है, क्योंकि कंप्लेंट तो कानून के दायरे में आने चाहिए। तो उस तरह से वो सोच के, लॉ को समझ के कंप्लेंट का बनाना, ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, और मैं ये जो स्टूडेंट्स को भी ये कह सकती हूँ कि आप एक सफल वकील जो कि ह्यूमन राइट के मुद्दों को उठाता है, और बहुत अच्छे आप किसी एनजीओ में बहुत एक्टिव हो सकते हैं, और आगे आप पॉलिसी मेकिंग में और आप रिसर्च में अपने कैरियर रेवेन्यू देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जी, आप ऑडिबल? I have muted myself. Thank you, ma'am. Okay. Elaborate discussion on this point. Now I want to ask a question, ma'am. How can we approach to those core committees? Means if I want to be a part of that, or my student wants to be a part of that, any such core committee, what should we do? No, I mean, I didn't say that core committee is an avenue for career I didn't say that. Core committee constitutes of the experts in the field. So you need to work in human rights, say, for about, your student is not capable, I mean, to my understanding, is not capable to be a part of the core committee. If this student himself becomes an activist, he files public interest litigation, he raises issues of concerning women, children, LGBTI, he is an activist, and he gets remedy or redressal for those victims.
I think that way they can be considered for being joined as a core group member. But in NHRC, as said, it can be research division or the law division, which directly employs, and they keep doing good work. The NHRC will certainly consider them for to be a member of the core committee. Right, ma'am. Now another question, because I teach criminal law in my classes, so whatever you have stated in the initial thing, I also say the same thing in the class, that when you apprehend a criminal who is a very dangerous kind of criminal, then immediately I also say in the class that human rights activists will come and they will raise slogan outside that you have violated the human rights. How you consider it to be how you balance these kind of conflicting views? No, listen. Every person, every individual has rights. I said that in the beginning. The commission will take cognizance of the fact that this man was arrested by the police, but the police did not enter the arrest in the daily diary. But there is no record. There is no record as to at what time he was apprehended, at what time he was brought before the police station. There is no record as to when was he medically examined. So all these statutory compliances which are required to be adhered by the police, if they are not being done, the role of National Human Rights Commission or role of any commission comes into the picture, and they ask, where is the timing at what you were arrested? Because there is a photograph showing that accused in custody of the police at 5 a.m. in the morning, but your record is not showing that you have arrested, so it is an illegal custody. So where is the role of a human rights activist in this? Tell me, Alok, I'm putting a cross question to you. Is it a case of an activism? No, ma'am, it's not. But generally, what happens that even if the serious offenders are there, like terrorists, and we always talk about their rights, so it is sometimes a matter of concern. Because no, listen, please. I'm saying it may be a serious terrorist or it may not be a serious terrorist. Irrespective of that, the statutory protection which that person has, the statutory protection of arrest, the statutory protection of being produced before a magistrate, the statutory protection of not being tortured by the police, the statutory protection that he should not be, the condition should be not such that he commits suicide in the police custody, statutory protection that he should not be tortured so much that he dies in the police custody. What is that? I mean, that is not activism. That is, the police has a limited role to play. Be it a terrorist who is a convict. So what happened, even for this Mazur Azad, the entire exercise of trial was there, and it has to be there. How can you say that because how can the incident of Telangana, where all the 4 accused were killed, how can that become a policy? That yes, police feels that they are the terrorists. So these are the guys who committed her rape and killed her. So let us kill him. How can that be endorsed as a rule of law or a system where the law takes a lead role? I mean, that cannot be an example. Any action inquiry NHRC is conducting in the Telangana case? Telangana, yes, Telangana case, NHRC was very much proactive. The moment the NHRC came to know about the killing of 4 accused persons by the police allegedly in an encounter, then on that very day, I mean, immediately in the morning, the flight was taken by the SSP, that is senior most IPS officer, and a senior most doctor on the panel from the AIIMS, who is an expert in this postmortem. He accompanied, and 6-7 other senior officers of commission, they accompanied, and a person was there who knew the local language, Telangana, I mean Telugu language. He also accompanied, because that when you go to these local places, language becomes a big hurdle. The communication stops. So that was a comprehensive team of a doctor, IPS officer, the NHRC staff, and a person who could translate. And they stayed there for 2 days. They conducted an entire inquiry. The dead bodies were also asked by the commission that they are not going to cremate them. They are not going to hand over to the relatives of the persons. And with great efforts of the IPS who had gone, the SSP who had gone, the dead bodies were
were preserved and protected, and they took because NHRC conducts an inquiry. NHRC never does one single side approach is not there. NHRC talked to the parents of that girl, the victim who was killed and raped. NHRC team also talked to the families of those accused who were killed. NHRC also took cognizance of the fact that before this incident, there were 5 such incidents where the dead bodies were found burned on the roads, and nobody took any cognizance, and they kept happening. Because, with the deterrent rape laws now, this has become one of the practice that you kill the girl so that there is no proof. So that's like the NHRC did a lot on this, but because of the intervention of the Honorable Supreme Court, the inquiry which the commission had already conducted, so many interviews, they kept sitting till late nights and took the interviews of the both sides. The inquiry was conducted, but it could not conclude, and the commission could not come up with its observation because of the fact that Supreme Court said that nothing doing. Supreme Court itself would carry out this. So that is not the way that if it's a hardened criminal, so police will kill, or in the which world or which era are we living? That in police custody the accused dies because he was a very hardened criminal. Encounter, the accused would die because he was a very hardened criminal. A commission also took cognizance of many encounter cases in UP. And 10, 12, 15 encounter cases in UP, the commission had taken cognizance of, and the inquiry was conducted, and those encounters have stopped now. I mean, whatever may be the reason. So, though no civilized society can say, yes, encounter is right. No civilized society. The commission or other human rights defenders say, if it is a genuine encounter, the police also has the power to kill only under CRPC. It is not like police has any power. Either it can be in self-protection, the right to use weapon which can kill is either under the self-protection, or he is not being allowed to arrest him. So if that is necessitated, or that person counterattacks, the use of weapons is necessitated, that circumstance has to be there. Commission has a total, encounter death. The commission has to be informed within 24 hours of the encounter. The postmortem has to be videographed. The site plan has to be shared with the commission. So commission takes care of all these things. And with this inquiry, the judicial magistrate inquiry is also there in CRPC, which says that encounter death, rape in custody, a judicial magistrate has to carry out the inquiry. Commission ensures that this inquiry has been conducted by the magistrate who send the inquiry report, follows it up to a logical conclusion. Right. Ma'am, the last I have seen your views on migrant workers also. Can you want to share something on migrant labor, what the commission is doing in that regard? So that I can share in this is the commission has taken cognizance of certain matters, and reports have been sought for. Commission has at different stages issued direction to the police, to all the state DGPs, that you please ensure that when the police is conducting, it ensure that the human rights of the laborers is protected. Commission has taken cognizance in many matters, even in that Aurangabad rail tragedy. The commission has taken cognizance in this commission has Auraya, where the bodies were accompanied by the injured, were kept with the same vehicle where the dead bodies were kept. Commission has taken cognizance. Commission has taken cognizance on the news report on Twitter, certain Twitter accounts where it's being shown that the police is beating the laborers. I feel bad when we use word migrant for our own people. I mean, maybe my parents were also from Punjab. Am I a migrant here in Delhi? No, because of being citizen of India, I have every right to settle here. So that's, all those cases wherever the complaints have come. But the process which commission undertakes is a long process, so the results don't come. But commission has taken cognizance and has asked for the reports in different complaints which has come before the commission, even during this period of lockdown. Yes, ma'am. We have seen actively, and after Telangana case, next day the media showed that NHRC officers have came. So yes, we notice in the media also that NHRC is taking care of many issues which are relevant, and I'm very thankful to you for highlighting those issues with our students and highlighting the opportunities, because I myself did not know about that the complainant can take help of any other person when filing of
Yes, yes. And the complaint can be by complainant or any other person on his behalf. So there, Not by any other person can initiate the process. right, Not that the complainant approaches him. No, he may initiate in the public interest kind of a thing. right. So that is a very good avenue for the young lawyers, because when Yeah. they're Yes. lawyers, they don't have much work. At least they can start here and Yes. two benefits. First, that they are helping the person who is not able to file a complaint, and secondly, they can have some kind of financial assistance through filing. Yes. And they will also learn. They will also learn the process. They will have a hands-on experience on the law, on provision relating to FIR, on provision related to cognizable offense. So while doing it, learning is earning also. They'll get. They'll be helping somebody. They'll be learning, and they will also be earning. Right. Yes, that's always there. Yeah. You can have all in one as a beginner, and the procedure is very easy, as you have mentioned, that they have to file the complaint only in the format given, and immediately the commission will take its own course. I am very thankful to you, ma'am, for giving these many opportunities, and you have discussed how the commission face conflicts, because some people say that commission is working from opposite side, the opposition says from this side, and in this kind of conflicting allegations, and the commission has to work in order to protect the human rights of the person. That is very important. I am very happy that you are doing your work in a proper way. Still in the COVID time, you are coming to your office daily. So that is since 20th of April, our commission is open. Since 20th of April. Yeah. But you are the remember who is coming. So Yeah. do you want to add something? I think she's not there. Okay, okay. So, ma'am, now on behalf of our Law Center 1, on behalf of Professor in charge, on my personal behalf, on behalf of the students, I would like to say thank you for giving us this insight, which we did not aware about it, that there are avenues. We only thought that the NHRC is kind of social work, as you have mentioned, but yes, the interested students can have great opportunities of work here also. Thank you. Yeah. Thank you for giving I thank you to you also for giving me a patient hearing. Thanks a lot. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Yes, thank you.